Assalamu alaikum guys. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss May 27th prompt, that is about Shimla Conference and 1945 to 1946 elections. So let's copy the prompt from here and let's move on to our GPT, sorry Gemini, and paste the prompt here and generate it. So today we are going to discuss. First of all, we are going to solve CSS 2029. Sorry, CSS 2019 Presi, Wavell Plan and Shimla Conference failure, and significance of Muslim League's victory in 1945 to 1946 election. अच्छा देखिए, exploration and adventure are part of human nature. Primitive man traveled to satisfy his hunger or to escape danger. Later, when agriculture developed and men settled down, traveling became less necessary for survival. But the desire to see new places, to learn about other people and their ways of living remained strong. Travel became an important means of education and culture. Today, rapid means of transport have made travel easy and comfortable. Millions of people travel for pleasure, business, health, or education. Traveling broadens the mind, cures narrow nationalism, uh, and promotes international understanding. It brings people of different nations, races, and religions closer to one another. Travel is no longer a luxury reserved for the rich. It has become a necessity for modern man. It enriches human experience, stimulates thought, and provides relief from monotony of daily life. So this is basically about traveling, about evolution of traveling, about value of traveling. Okay, so this is the title. What that passage actually says. So evolution and value of travel. Human travel evolved from primitive survival necessity. Human travel evolved from primitive survival necessity into a vital cultural pursuit. Although agriculture ended a nomadic life, curiosity sustained the desire to explore. Modern transportation has made travel universally accessible for leisure, health, and business. Beyond recreation, travel reduces national prejudice, fosters global harmony, and enriches human experience and relieves routine daily monotony. monotony. So this is the solved presi of the passage 2029. That is so. Moving forward, let's discuss the Wavell Plan and Shimla Conference 1945. In June 1945, Viceroy Lord Wavell released a proposal to resolve the political deadlock in India and rebuild Indian support for the ongoing war effort against Japan. सो 1945 में लॉर्ड वेवल ने जो ना एक प्रपोज़ल रिलीज़ किया, जो कि इंडिया में जो पॉलिटिकल डेडलॉक था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान, उसको हल करने के लिए, और जो इंडियंस की जो सपोर्ट थी उसको रीबिल्ड करने के लिए, ताकि जो ऑन गोइंग जापान के साथ वार है उसको कूप किया जा सके. The Wavell Plan 1945 reconstituted executive party class. Okay, all members Indian except Viceroy and Commander in Chief.
Equal seats for caste Hindus and scheduled Muslims. अच्छा, वेवल प्लान में जो ना इक्वल सीट्स दी गई थी हिंदूज को भी और जो मुस्लिम्स हैं उनको भी, और ऑल मेंबर्स जो थे वो इंडियन होंगे एक्सेप्ट वाइसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा, ठीक है। की टर्म्स ऑफ द प्लान। The Viceroy Executive Council would be reconstituted with all members being Indian except the Viceroy and Commander in Chief. अच्छा देखिए, वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी इस वुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा विद ऑल मेंबर्स, जिसमें तमाम मेंबर्स जो हैं ये इंडियन होंगे एक्सेप्ट वाइसराय एंड कमांडर इन चीफ, सिवाय वाइसराय की और कमांडर इन चीफ की। अच्छा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी इसमें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हिंदू कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स, यानी कि हिंदू और मुस्लिम्स जो है ना इन दोनों के लिए सेपरेट सीट्स जो है ना मुख्तस की गई थी। और द काउंसिल वुड फंक्शन एज एन इंटीरियम गवर्नमेंट अंटिल अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। और जो काउंसिल है वो फंक्शन करेगी एज इंटीरियम गवर्नमेंट के तौर पर जब तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट किया जाता, ठीक है। द शिमला कॉन्फ्रेंस, जून टू जुलाई 1945, Lord Wavell convinced sorry, Lord Wavell convened a conference of 21 political leaders at Shimla to finalize the nominations for the Executive Council. This Shimla breakdown, Jinnah's demand, Congress stands. जिन्ना ने ये डिमांड की कि all 5 Muslim seats must belong to Muslim League. अच्छा, claimed right to nominate Muslims, e.g. अब्दुल कलाम आज़ाद। अच्छा, कांग्रेस का ये स्टांस था कि कांग्रेस चाहती थी कि मुस्लिम्स को भी वो खुद ही नॉमिनेट करेंगे कांग्रेस, जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद को वो नॉमिनेट कर रहे थे। और जिन्ना साहब ये चाहते थे कि ऑल 5 मुस्लिम सीट, जो कि तमाम मुस्लिम सीट्स हैं 5, वो मुस्लिम लीग से ही बिलोंग करेंगी। अच्छा, रीजंस फॉर फेलियर अगर हम देखें, द मुस्लिम नॉमिनेशन डिस्प्यूट, कांग्रेस काउंटर क्लेम, द पंजाब यूनियनिस्ट एंगल, वाइसरॉयज यूनिलेटरल ब्रेकडाउन। So these all are the reasons. So reasons for failure अगर हम देखें, the Muslim nomination dispute. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah insisted that all 5 Muslim members of the council must be nominated exclusively by the All India Muslim League, as it was the sole representative body of Indian Muslims. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ये स्टांस था कि जो तमाम 5 मुस्लिम मेंबर्स हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक मेंबर होंगे, तो उनकी नॉमिनेशन एक्स जो है वो एक्सक्लूसिवली बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होगी, क्योंकि जो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन है वो तमाम मुस्लिम्स जो इंडिया के हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो सियासी जमात कर रही है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। कांग्रेस का जो काउंटर क्लेम था इसके बरक्स वो ये था, कांग्रेस जिसको लेड एट द कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद refused to accept this, claiming it was a national party representing all communities, and insisted on nominating at least one Congress Muslim. तो
कांग्रेस ने लेड एट द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है ना वो कांग्रेस के मेंबर के तौर पर एज ए वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जिसमें इस बात को रेफ्यूज़ कर दिया गया था कि तमाम जो 5 सीट्स हैं मुस्लिम्स की वो मुस्लिम लीग को दी जाएं, जबकि इस बात पर जोर दिया गया कि क्योंकि कांग्रेस जो है वो पूरे बर सग़ीर पाक व हिंद की एक सियासी जमात है, तो जो कि ना कि सिर्फ हिंदूज़ बल्कि मुस्लिम्स की भी बराबर नुमाइंदगी करती है। तो ब्रिटिश को चाहिए कि वो एट लीस्ट वन मेंबर जो है ना, एक मेंबर जो है ना वो मुस्लिम सीट का वो कांग्रेस को भी दे। अच्छा देखिए, पंजाब यूनियनिस्ट एंगल, लॉर्ड वेवल वांटेड टू रिजर्व वन मुस्लिम सीट फॉर द पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, मलिक खिजर हयात तिवाना, which Jinnah rejected outright because it would dilute the league's central authority। जिसको जिन्ना ने जो है रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो ये आउटराइट कर रहा था, क्योंकि मुस्लिम्स के राइट के ख़िलाफ़ था, बिकॉज इट वुड डाइल्यूट, क्योंकि ये यानी कि तबाह कर देगा लीग्स की सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसको। ठीक है, लॉर्ड वेवल जो है ना वो ये चाहते थे कि मुस्लिम्स की एक सीट जो है वो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, जो कि लीड कर रहे थे मलिक खिजर हयात तिवाना, विच जिन्ना रिजेक्टेड, जो कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि ये जो है लीग की सेंट्रल अथॉरिटी उसको तबाह कर देगा, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी फिर जो है ना वो कांग्रेस के पास ही चली जाएगी, क्योंकि जब सीट्स मुस्लिम की कम हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है। वाइसराय's unilateral breakdown. Seeking no compromise, Wavell unilaterally declared the conference a failure on July 14, 1945 without pushing Congress to concede। अच्छा, सीकिंग नो compromise, जब देखा कि कोई compromise नहीं कर रहा तो वेवल यूनिलेटरली ज़ाती तौर पर उसने कॉन्फ्रेंस को एज अ फेलियर करार दे दिया जुलाई 14, 1945 को, विदाउट पुशिंग कांग्रेस टू कंसीड। स्ट्रेटेजिक टेक अवे अगर इसमें हम देखें, द फेलियर एट शिमला प्रूव दैट नो सेंट्रल गवर्नमेंट could be formed without Jinnah's consent। It set the stage for a general election to settle who truly spoke for Indian Muslims। अच्छा देखिए, ये बड़ी कीमती बात है यहाँ पर जो मैं पढ़ के हैरान हो रहा हूँ। द फेलियर एट शिमला प्रूफ, यानी कि शिमला कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद ये बात तो साबित हो गई थी कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं बन सकती जब तक कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रजामंदी शामिल नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए जिन्ना साहब ने अपनी पावर अपनी प्रूव तो करवाई ना, उन्होंने अपनी एफर्ट प्रूव करवाई। ऐसा नहीं है कि अब वो जिन्ना की मर्ज़ी के बगैर जो मर्ज़ी चाहे कर लें। तो इट सेट द स्टेज फॉर अ जनरल इलेक्शन, इसने जो है ना वो जनरल इलेक्शन की बुनियाद रखी, ताकि ये बात तय की जा सके कि कौन जो है वो इंडियन मुस्लिम्स की वाकई में नुमाइंदगी करता है। ठीक, वैसे कहने को तो कांग्रेस भी नुमाइंदगी कर रही थी इंडियन मुस्लिम्स की, कहने को तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी नुमाइंदगी कर रही थी मुस्लिम्स की, और कहने को तो द यूनियनिस्ट पार्टी लेड बाय मलिक खिजर हयात तिवाना, तो वो भी मुस्लिम्स की नुमाइंदगी कर रही थी। ठीक है, तो अब देखना ये था कि वाकई में मुस्लिम्स की नुमाइंदगी कौन सी सियासी जमात कर रही है। तो इस बात को परखने के लिए 1945 के जो है ना इलेक्शंस रखे गए,